Praise the Lord. Praise the Lord. I welcome everyone. हम आप सबको स्वागत करते हैं। Very happy to see you all here. हम बहुत खुश हैं आप सबको मिलकर। आप लोग खुश नहीं लग रहे पर You all does not seem to be happy. कितने लोग खुश हैं? How many of you all over here are happy? हालेलुया। Hallelujah. यहाँ से देखने में आप सब बहुत खुश लग रहे हो आज। When I'm looking from there, I can see that you all are happy. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष करे। Today is an important day. आज का दिन जो है ये बहुत मुख्य है। पता है क्यों? You know why? कोई बता सकता है क्यों आज important Can है? someone let me know why it's an important day? कुछ भी कोई बता सकता है क्यों आज एक important day है? परमेश्वर का आराधना करने। Very good. आज पेरेंट्स डे। कितने लोगों को पता है कि आज पेरेंट्स डे है? How many of you all knew before today's Parents Day? किसी को भी नहीं पता था। Nobody knew it. आज पेरेंट्स डे है। हालेलुया। Today is Parents Day. बहुत लोग को यहाँ पर पेरेंट्स नहीं रह सकते। So many of you all here do not have your parents. कुछ लोग को बच्चे भी नहीं रह सकते। For some, they will not have children. पर कलीसिया में But in church, आपके लिए सब कुछ यीशु मसीह है। everything is Jesus Christ for you. जैसा इस दुनिया में एक माता पिता है, How in world today we have a mom and dad. वैसे मसीह में भी हमारे लिए एक माता पिता है। Similarly, in Christ also we have a mother and a father. कितने लोग जानते हैं? How many of you all know that? हाथ उठा कर। Lift your hand up. जो हमें मसीह के मार्ग सिखाते हैं, The one who shows the way of Christ, वो हमारे लिए आत्मिक माता पिता है। they are our spiritual father and mother. मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब खड़े हो जाएंगे। I would request everyone to stand up. इस कलीसिया में हमें चलाने वाले This church, someone is leading us. हमारे लिए माता और पिता For us, our mother as well as our father, पास्टर थॉमस नॉवले। Pastor Thomas मैं Novelis. चाहता हूँ कि सब उन्हें विश करें कि हैप्पी पेरेंट्स डे। I request each and every one to go and wish him Happy Parents Day, दुनिया के माता पिता because your parents in the world, वो भी कभी भूल सकते हैं, they might forget you at some point of और time. ये आत्मिक माता पिता है ना, But there is a spiritual father and mother. ये हमेशा आपको प्रार्थना में रखते रहते हैं। They will always keep you in their prayers. आप कलीसिया में आए या नहीं आए, Whether you come to the church or not, पर इनकी प्रार्थना में आप हर समय रहते हैं। but in their prayers you are always remembered. ये बहुत मुख्य है कि हम उनको आदर करना चाहिए। It's very important to honor our तो मैं spiritual चाहता हूँ parents. कि सब जाके उन्हें आज विश करें कि हैप्पी पेरेंट्स डे। So I would request everyone to go and wish Pastor Thomas Noel Happy सब Parents सब Day. जाके Everyone go and wish. हालेलुया। आप में से अगर कोई है जिनको आपके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, If any one of you are here who do not have their own children, मैं आपका बेटा हूँ। I am your son. हैप्पी पेरेंट्स डे टू एवरीवन। Happy Parents Day to each and every one. हालेलुया। Hallelujah. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. हम परमेश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद We करेंगे would thank God for this new day, कि परमेश्वर ने आज हमें चुना है इस दिन के because लिए। God has chosen us for today. बुलाया, बहुत लोग को बुलाया गया था, Many were called, पर कुछ लोग चुने गए थे। but only few were chosen. आप लोग चुने हुए लोग हैं। You are the chosen people. हम इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हैं। That's why we are going to thank God, क्योंकि परमेश्वर उस भीड़ में because God from the crowd, आपको और मुझे चुना है। from the crowd He chose you and He chose me. अब योग्य नहीं थे, We are not worthy, परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। but God made us worthy. उसने इसीलिए चुना है He has chosen us because कि उसने आप पर भरोसा किया है। He trusts you. आप उस पर भरोसा करने से पहले Even before you trusting God, उसने आप पर भरोसा किया है। He trusted you. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे Let's close our eyes और इस दिन के लिए परमेश्वर को पहला धन्यवाद and we will
new day. सारी महिमा और स्तुति का योग्य है तू, सामर्थ्य राजा है तू। सारी महिमा और स्तुति का योग्य है तू, सामर्थ्य राजा है तू। सारी सृष्टि का मालिक तू, मेरे स्वर्गीय राजा है तू। सारी सृष्टि का मालिक है तू, मेरे स्वर्गीय राजा है तू। स्तुति आराधना तुझे प्रभु, स्तुति आराधना तुझे, स्तुति आराधना तुझे प्रभु, स्तुति आराधना तुझे प्रभु, स्तुति आराधना तुझे प्रभु। எல்லா மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் உரியவரே, மாட்சிமை நிறைந்தவரே. எல்லா மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் உரியவரே, மாட்சிமை நிறைந்தவரே. சர்வஸ்ரேஷ்டிக்கும் எஜமானனே, எங்கள் பரலோக ராஜாவே. சர்வஸ்ரேஷ்டிக்கும் எஜமானனே, எங்கள் பரலோக ராஜாவே. ஆராதனை உமக்கே சொந்தம், ஆராதனை உமக்கே சொந்தம், ஆராதனை உமக்கே என் இதயத்தில் தங்கி நீ ஜீவிக்கிறீர். தேவாதி தேவன் நீரே, கரம் பிடித்து நடத்துகிறீர், ஒரு போதும் மறவீரையா. கரம் பிடித்து ஒரு போதும் மறவீரையா. துதி ஆராதனை உமக்கே சொந்தம், துதி ஆராதனை உமக்கே சொந்தம், துதி ஆராதனை உமக்கே சொந்தம், துதி ஆராதனை உமக்கே சொந்தம். Thank you God for this wonderful time. धन्यवाद परमेश्वर ये अच्छा समय के लिए। We praise you, we worship you God. हम आपका आराधना करते और आपका स्तुति करते हैं You परमेश्वर। have brought us together God. आपने हमें साथ यहाँ पर ले आए, So we thank you with our whole heart God. इसलिए हम पूरे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। Start till end God. शुरुआत से अंत तक You be with us God. आप हमारे साथ रहना, You lead us God. आप चलाना परमेश्वर। Your name should be glorified. आपका नाम महिमा होना चाहिए And परमेश्वर। bless the people who are here. हम हर एक जन को आशीष कर रहे And हैं bless the people who are watching online जो God. ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी हम आशीष I कर रहे pray हैं। for the people who are not able to come here today जो God. आज नहीं आ पाए उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं What परमेश्वर। blessing you have kept today God. आपने जो आशीष आज के लिए रखा है Let each and everyone receive that God.
वो हर एक जन को मिले। We should decrease, God. हम घटना चाहिए You परमेश्वर should increase. और आप बढ़ना चाहिए परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। Let's everyone sit down. हालेलुया। हालेलुया। मेरा आवाज एकदम क्लियर है, डिस्टर्बेंस नहीं। Am I audible and clear? आज का दिन बहुत मुख्य है। Today is a very important day. आज संडे है इसीलिए, It's Sunday today और एक पेरेंट्स डे भी है। as well as it's Parents' Day today. उससे भी मुख्य है कि More than that परमेश्वर का वचन। is the word of God. कितने लोग यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए? How many of y'all are here to hear the word of God? हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन में ही जीवन है, Because the word has life और वचन ही आपको छुटकारा दे सकता है। and only the word can heal you, deliver you. तो आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। So let's see what God has in store for us today. आप यहाँ पर आने समय कैसे आए थे? While coming here, how y'all came? आप एक आइडेंटिटी लेके आए रहेंगे। You would have got yourself with a identity. आप यहाँ पर आने समय When y'all were traveling here, कमजोर आए रहेंगे। you would be weak. आप यहाँ पर आने समय While coming here, आपके मन में एक तकलीफ था। you might be burdened within your heart. आप यहाँ पर आने समय While coming हो here, सकता है रो के आए रहेंगे। you would have been crying and coming away. आप यहाँ पर आने के लिए When to come over here, अपनों लोग से भिड़ के भी आए रहेंगे। you would have fought with your own people to come here. आप यहाँ पर आने के लिए To come over here, कल रात से तकलीफ हुआ रहेगा। there might have been problems since last night. आप मैं यहाँ से देख सकता हूँ I कि can see from here, बहुत लोग मन में बोझ के साथ यहाँ पर बैठे हैं। so many of y'all are so burdened within your heart. ये बोझ इसीलिए है कि This burden is there लोग आपको तकलीफ दिए, because the people have hurt you. अपने लोग ने आपको तकलीफ दी है Your own people have hurt you और आपको इंसल्ट किए and they have insulted you और आपको गिने नहीं वो लोग ने। and they have not counted you in. पर ये सब होकर भी Despite all these things, आप यहाँ पर आए you have come here क्योंकि आप जानते थे कि because you knew परमेश्वर के घर में ही in the house of God मुझे समाधान मिलेगा। there would be peace. परमेश्वर के घर में ही In the house of God मुझे शांति मिलेगा। there will be peace. तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि I would request everyone, ये आधा घंटा जो भी है the next half an hour, सिर्फ वचन पे ध्यान देंगे। just focus on God's word. आपको तकलीफ है, I know you have problems. आपको कमजोरियां I हैं, know you have weakness. आपके दिल में बहुत चीज चल रहा है। I know you have so many thoughts in your heart. यहाँ से बाहर वो फिर से आपके साथ ही रहने वाला है। After going from here, it will be there with you. पर इस समय But this time, बहुत मुख्य है it's very important परमेश्वर की ओर को ध्यान दें। to focus on God. परमेश्वर आप हर एक से आज बात कर रहा है। Because God is talking to each one of you मैं जब today. परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर When I was asking God, तेरे लोग से मैं क्या बात करूं? what should I talk to your people? क्योंकि वो तेरे भरोसा आते हैं। Because they come in trust of you. वो ये चाहत से आते हैं कि They think, they desire and come आज मेरे से परमेश्वर बात करेगा, that God will talk to me today. आज मेरा प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व करेगा, God will solve my problems आज मेरा today. जरूरत यीशु मसीह पूरा करेगा। My needs will be fulfilled today. मैं भी ऐसा पूछता हूँ कि परमेश्वर तू क्या बात करना चाहता है? I also asked God, what do you actually want to talk to गॉड them? मुझे एक चीज बताया, God showed me a thing. ये लोग टूटे हैं। These people are broken. मैं बोला कैसा टूटे हैं परमेश्वर? How are they broken? इन लोग को अंदर घायल है, They have wounds inside. इन लोग को लोग ने मना किया, These people were rejected by people. इन लोग को लोग ने कम समझा, These people were counted low by their own. इन लोग को सवाल पूछा कि तू सेवा करने के लिए योग्य है क्या? They were asked a question, are you worthy to serve God? इन लोग को लोगों ने पूछा कि तू बात करने भी योग्य है क्या मेरे सामने? Also they asked, are you worthy to talk even? इसीलिए इन लोग को मैंने चुना, ऐसा परमेश्वर ने बोला। That's why I have chosen these अब वचन people. पढ़ेंगे Let's read लूक 6:22। ल्यूक में, लूका 6 में 22 रीड करेंगे। Luke chapter 16, Luke chapter 6 verses 20. ലൂക്ക 6:22
Blessed are you Blessed are you when people hate you, when people hate you, when they exclude you when they exclude you and insult you. and insult you. Enough. 6:22 और Luke 6:22. धन्य हो तुम धन्य हो तुम. बाकी लोग सुन लेना. धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे तुमसे बैर करेंगे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे. हालेलुया. Hallelujah. Word says, वचन कहता है, blessed are you धन्य है तुम when people reject you, जब लोग आपको ठुकराते हैं, when people insults you, जब लोग आपका निंदा करते हैं, when people avoid you. जब लोग आपको निकाल देते जिंदगी से. In short, God is saying, परमेश्वर कहता है, blessed are you धन्य है वो when लोग you are counted as a rejected stone. जब लोग आपको इनकार कर देते हैं. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोगों को समझा मैं क्या बता रहा हूँ? How many of you all understood what I am trying to say? वचन कहता है, The word says, धन्य है तुम लोग blessed are you people जब लोग आपको इनकार कर रहे हैं, when people reject you, जब लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, when people insult you, और जब लोग and when people आपको एक्सक्लूड गिनती भी नहीं कर रहे. just exclude you, count you out. हालेलुया. Hallelujah. मैं पूछा इसमें कैसा धन्य हो सकता है? How can someone be blessed when people do these things? आप मुझे बताना. Just tell me, अगर आप एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, if you're going for a family function, आपके रिलेटिव्स your own relatives, अगर आपको ध्यान नहीं देगा तो आपको धन्य लगेगा. they are not looking at you and not talking. Will you अच्छा feel लगेगा आप happy? लोगों? Will you feel blessed? हाँ ना. Yes, no. अगर आप एक कलीसिया में बैठे हैं, If you are in a church, सबको ध्यान दे रहे, everyone is being cared आपको for ध्यान नहीं दे रहे, आपको अच्छा लगेगा. except for you. Will you like it? अगर आपकी पत्नी If your wife या आपकी पति or your husband किसी के सामने in front of someone, आपको सम्मान नहीं दे रहे, अच्छा लगेगा. they are not honoring you, will you like it? पर वचन कहता But है, the word says, blessed are you धन्य है तुम when people ignores you, जब लोग आपको इनकार करें, insults you जब निंदा करें and avoids you. और आपको निकाल दे जिंदगी से. हालेलुया. Hallelujah. हम और एक वचन पढ़ेंगे. Let's read one more verse. John 15 यूहन्ना में 15, 90 15 में 90. 19 रीड करेंगे. यूहन्ना 15:19. யோவான் 15:19. If you belong to the world, हाँ. it would love you as its own. Okay. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. हालेलुया. Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे. Let's read in यदि Hindi. तुम संसार के होते ध्यान से बाकी लोग सुनना. यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रीति रखता. हालेलुया. It's very important to understand the word. ये बहुत मुख्य है कि तुम वचन समझे. यदि आप लोग इस दुनिया के लोग जैसे होते, If you are belonging to the world, यदि आपका सोच, that means your thought process आपका चाहत and your desire इन लोग जैसे होता, would be like the people of the तो world, ये लोग आपसे प्रेम रखते थे. then they would have loved you. अगर आप इन लोग जैसे सोचने लगेंगे ना दुनिया वाले, If you would be like them, इनका सोच कैसा रहता है, their thought process, वो भी नहीं बढ़ेंगे, that will also not grow, हमें भी बढ़ने नहीं and they देंगे. will not allow you to grow as well. अगर ऐसा सोच आपका होता, But if you had the same thought, तो आपसे ये लोग प्रेम करते थे. then they would be loving you. हाँ, पढ़िए सिस्टर. Let's read. परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हालेलुया, तुम इस संसार के नहीं हो. You are not of the world, आगे. वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है. हालेलुया. हालेलुया. तुम संसार के इसीलिए नहीं हो you are not of the world because क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें संसार से. चुन लिया है. because God has chosen you out of the world. अब आप आजू बाजू में बोलना, Let's look beside your neighbor and say, तुम संसार के नहीं हो, संसार you are not of the world. परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है. God has chosen you. बोलेंगे तुम संसार के नहीं हो, You are not of the world. परमेश्वर ने तुम्हें चुना है. God has chosen you. इसीलिए दुनिया आपसे नफरत करता है. That's why the world hates you. आज समझ लिया आप लोग. Are you able to understand today? आपको अगर लग रहा है कि मेरे खुद के बच्चे लोग मुझे नफरत करते, If you think my
own children are hating me. मेरा पति मेरे को नफरत कर रहा My है, husband hates me. मेरे को कभी इज्जत नहीं देता है, He doesn't respect me. मेरा पत्नी मेरे को कभी भी इज्जत नहीं देती My है, wife doesn't honor me at all. मेरा माता पिता मुझे इज्जत नहीं देते। My parents do not honor तो me. एक चीज समझ लो, Then understand this thing. आप इस संसार के, You are not of this world. आपको किसने चुना है? Who has chosen you? हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग बरसा कहते हैं परमेश्वर ने मुझे How चुना many है? of you all believe God has ताली chosen बजाकर you? बोलना, Let's परमेश्वर clap for Him. मुझे चुने इसके लिए आपको धन्यवाद। God, you have chosen me, so I am thanking you, Lord. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता I would like to tell a small story. हूँ। उस स्टोरी पढ़कर From that story, हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। we will pray and finish. थोड़ा बड़ा सा स्टोरी है, That's a big story. मैं चाहता हूँ सिर्फ ब्रदर हिंदी में पढ़ेंगे, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। I would request Brother John to read and rest everyone to just listen. ये स्टोरी आप ध्यान से सुनना, You all hear it out. आपने बहुत बार पढ़े रहेंगे ये स्टोरी, You would have read this multiple times before. पर मुझे इस स्टोरी में एक चीज बहुत अच्छा लगा। But from this story, I liked something. आप लोग जैसे यहाँ पर आए हैं, How y'all have come over here. आपकी जरूरत से यहाँ पर आए हैं। Y'all would have come with some of the other मैंने needs. आपको बोला कि आपको परमेश्वर ने चुना है। I told you that God has chosen you. कितने लोग चाहते हैं कि क्यों चुना है? How many of y'all want to know why God chose अब you? मैंने आपको बोला परमेश्वर ने आपको चुना है, I told you that God chose you. तो आपको पता चलना चाहिए ना क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है। You should be aware why God chose you, right? लोग ने आपको इनकार किया, इसके लिए आपको चुना है। When people rejected you, that time God chose you. और चुनने का एक कारण होता है ना। But there is a reason for choosing you, हम right? ये स्टोरी पढ़ेंगे, Let's read मैं this चाहता हूँ story. घर पे जाके पूरा ये स्टोरी पढ़ना। I would request you to go home and read the entire story. अब सिर्फ ध्यान से ये स्टोरी सुनना। Now you'll just listen carefully to this. Let's go to the book of John. John 4। युवन्ना में 4 लेंगे, योवान 4 अधिकारों. जिनके पास बाइबल नहीं आप लोग सुन लेना। If you all do not have the Bible, you'll just hear. आप मेरे साथ इस स्टोरी में चलना। You all also travel with me to this story. John 4। युवन्ना 4 में Let's read from 7 in Hindi। 7 से पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ एक छोटा सा। जीसस यहाँ पर Jesus in this story, अपने चेलों के साथ along with his disciples, एक गांव पर गए। he went to a village. वो गांव पर जाकर In that village, जीसस एक वेल क्या बोलते हैं इसको, कुआं. कुआं के बाजू में बैठे थे There was a well and Jesus sat beside the well और बाकी उसके चेले सब खाना लेने चले गए। and all the other disciples went to buy some food. समझा इतना? Have you all understood so far? मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। I will ask question at the end. ऐसा लास्ट वीक पास्टर बोले आपको चॉकलेट मिलेगा अगर करेक्ट आंसर बोलेंगे तो। How pastors told last week you would receive chocolate if you are giving the right answer. ठीक है। जीसस अभी एक कुआं के बाजू में बैठे हैं। Jesus was sitting beside a well. सारे चेले खाना लेने चले गए। All the disciples went to buy food. जीसस ने भेज दिया उनको खाना लेने। Jesus had sent them to buy food. एक जन को खाना लेने 12 लोग गए। To buy food for one person, 12 people left. 7 से पढ़ेंगे अपन। इतने में एक सामरी स्त्री हाँ जल भरने को आई। ठीक है। अब वहाँ पर एक वो गांव की स्त्री है, There was a Samaritan woman. वो जल भरने के लिए आई थी। She came there to draw water from well. जहाँ पर कौन बैठा है? Who was sitting there? आप रिप्लाई करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी कौन बैठा है यहाँ पर? Jesus. अब गांव से कौन आ रहा है? Samaritan woman. ओके आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ मुझे पानी पिला, ओके क्योंकि उसके चेले तो हाँ नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। आगे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? ओके क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ हाँ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। ओके। फर्स्ट यीशु ने उत्तर दिया, हाँ यीशु तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। तो अब तक स्टोरी ये है कि जीसस ने उस स्त्री से पूछा, So the story is Jesus asked the woman, मुझे पानी दे। give me some water. और स्त्री ने बोला, And what did the woman reply? आप मेरे से क्यों पानी मांग रहे हैं? Why are you asking water from me? क्योंकि वो दोनों अलग अलग
ट्राइब से थे। because they were from different tribe. तो जीसस ने बोला कि So Jesus said, अगर तू जानती है कि तेरे से कौन पानी मांग रहा है, if you would just know who is asking water from वो ये you, बता रहा है, तू जानती नहीं थी तेरे से कौन पानी मांग रहा है। you are not understanding who is asking water from you. आगे बढ़ेंगे। Let's read. स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, ओके, और कुआं गहरा है, हाँ, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हालेलुया। अब जीसस ने उसको बोला कि तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही है। Jesus said, you do not know to whom you are talking. अगर तू मांगती तो If you would have asked, मैं जीवन का नदी तेरे को दे देगा। I would have given you the living water. ये सुनते इसका थॉट क्या आया? After listening to this, what she thought, इसके पास तो कुछ बर्तन नहीं है। she did not have a vessel. जीसस के पास कुछ पानी निकाल के देने के बर्तन नहीं है। Jesus did not have a vessel or something to draw water and give. ये कैसा पानी देगा? How can he give इसने water? वही पूछा ना, जीसस आपके पास तो कुछ टोकरी नहीं है, आप कैसा पानी देंगे? What she said, you do not have a vessel, how can you draw water and give? हम भी पूछते ना, जीसस तो बात नहीं कर रहे तो मेरे को ब्लेस कैसा करेगा? We ask, right? You are not talking to me, how can you bless me, आगे Jesus? बढ़ेंगे। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, हाँ, जिसने हमें यह कुआं दिया, ओके, और आप भी अपनी संतान हाँ। और अपने पशुओं समेत उसमें से ओके। पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, जो कोई यह जल पिएगा हाँ, वह फिर प्यासा होगा, ओके, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हाँ, वह फिर अनंत काल तक प्यास न होगा। हालेलुया। अब जीसस उसको गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। Now Jesus is preaching the gospel. ये पानी जो भी पिएगा If anyone who drinks this water from प्यासा well, रहेगा, they will be thirsty तो again. मैं जो पानी दूंगा But the water what I would give, वो उसको कभी प्यासा नहीं they रहेगा। will never be thirsty again. जीसस जान लिए, देखिए Because Jesus knew वो पानी भरने आई है, she has come to draw water from well. वो प्यास बुझाने के लिए She has come for a thirst. पानी भरने आई है। She came to draw water. जीसस जब आप यहाँ पर आए थे, Because when Jesus came, आपका समस्या वो जान लिया था। Jesus already knew your problems. स्त्री भी एक समस्या से आई थी, That women also came with a problem. इसीलिए पानी के बारे में बात हो रहा था। That's why they are talking about water. अब स्त्री के जगह में अपने आप को डाल लेना। Now in place of that, women, you put yourself. उसको पानी चाहिए था, She wanted water. आपको जो चाहिए आप वो डाल देना। What you want, you think और about. स्त्री उसका समस्या बता रही थी, That woman was talking about her own problems. मुझे बार बार आना पड़ता है I have to come again and और again. पानी बार बार निकालना And पड़ता I है। have to draw again and again. पर जीसस ये बोल रहा था, But Jesus was saying, मैं तुझे कुछ दूंगा, I will give you तू something. कभी प्यासा नहीं After रहेगी। that, you will not be thirsty again. आगे बढ़ेंगे। Let's read ahead. वरन जो जल मैं उसे दूंगा हाँ, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। अब जीसस ये बोले कि मैं तुझे एक जल दूंगा, Jesus said, I will give you a तो water. तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा, फाउंटेन बन जाएगा। There will be a wellspring fountain inside. कितने लोग को फाउंटेन पता है? How many of you know what मालूम a है, पानी fountain आते is? ही रहता है, उस पे पानी आते रहता है। There will तो be जीसस water ये again. बोले, and मैं again. तुझे एक फाउंटेन दे दूंगा, I will give you a तेरे fountain. अंदर पानी आते ही रहेगा। There will be generation of water again and again. आगे, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, आगे, स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, ए प्रभु, वह जल मुझे दे, वो जल मुझे दे। ताकि मैं प्यासी न हो हालेलुया। और न जल भरने को हाँ, इतनी दूर आऊं। हालेलुया। समझ गया? स्त्री का प्रॉब्लम ये था कि The woman had this problem. उसको बहुत दूर चल के आना पड़ता She था has to walk a long way पानी भरने के लिए। to draw तो water. जीसस जब उसको जीवन के जल के बारे में बात किए, And when God spoke about living water, वो बोली मेरे को दे दे, she told, give me Lord, फिर मेरे को चल के नहीं आना पड़ेगा। because I don't want to walk again. यहाँ पर परमेश्वर उसको कुछ बड़ा देने का बात कर रहे हैं, Now God wanted to give something big, वो उसका तभी का जरूरत देख रही है। but she was just thinking of the present आप भी need. समझ लेना, You also think, आप यहाँ पर एक तकलीफ से आए थे, you are here for the आप एक problem. जरूरत से यहाँ पर बैठे, You are here with the need. आपको सिर्फ वही चाहिए कि सही होना चाहिए। You just want that to be resolved in your आप यहाँ life पर right आए कि now. परमेश्वर मुझे इस चीज से चंगाई किया तो बस हो गया, You are thinking that if God heals me from this problem, I'll be मुझे okay. ये मदद किया तो बस हो गया, If I got this help from the Lord, I'll be मुझे happy. इससे छुटकारा दे बस हो गया। If I'm delivered from this problem, I'm आप एक fine. छोटा चीज बात कर रहे You हैं, are just talking about small things. परमेश्वर आपको बड़ा चीज का बात बता रहा है। But God is talking something big for you. समझ रहे हो आप? Are you able to understand? आगे बढ़ेंगे। Let's read ahead. यीशु ने उससे कहा, हाँ, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ, स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बिना पति की हूँ। ओके, यीशु ने उससे कहा, हाँ,
तू ठीक कहती है, हाँ मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ और जिसके पास तू अब है हाँ वह भी तेरा पति नहीं। हालेलुया। अब जीसस उसका प्रॉब्लम बता रहे हैं। Now God is telling her about her problem. यहाँ पर जीसस उसको बेइज्जती करने के लिए नहीं बात की। Jesus never wanted to insult her. आपको लग रहा है यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये ऐसा बात हुआ था? Do you think that God is trying to insult her? गॉड चाहते थे उसका मुंह से वो बोले कि उसका 5 पति था या नहीं। अगर गॉड ऐसा चाहते थे तो 12 डिसाइपल्स को भेजते थे अकेले में। Why did God told the other 12 disciples to go away from him? यहाँ पर गॉड उससे अकेला बात करना चाहते थे। God wanted to talk to her alone. गॉड ये बता रहे थे उसको, Jesus was trying to 5 say, लोग तेरे साथ थे, there were 5 people वो with कभी you. तेरा पति नहीं रह पाए। They were never your husband. अभी भी तेरे साथ कोई है, There is someone now वो भी वो also. पति का काम पूरा नहीं कर रहा। He is also not fulfilling the यहाँ work पर of a गॉड husband. उसका तकलीफ जान लिया था। Here God knew her problem. देखो दुनिया के लोग अगर ये स्थिति में रहते थे ना, If the people of this world वो अलग सोच के क्वेश्चन पूछते थे। would be in this situation, they would question you differently. यीशु मसीह का वो इंटेंशन नहीं था। But Jesus was not like that. उसका एक ही था, His intention was, तेरे साथ जितने भी लोग थे the people who are with you, तेरे को खुश नहीं रखे। they did not keep you happy, right? अभी जो है And now the one whom with you वो भी are, तेरे को खुश नहीं रखा। he is also not keeping you happy. आपको मालूम है You know what? ये समार्ती स्त्री लोग है ना, The Samaritan women, वो लोग सब साथ में पानी भरने आते हैं they all come together to draw और water. सुबह आते हैं। And they come in the morning. पर ये एक स्त्री But this woman, ये दोपहर को आई थी she came in the और afternoon. ये अकेले आई थी। And she came alone. मतलब ये वो स्त्री है She is the woman, जिन्हें लोग ने रिजेक्ट किया था। she is the woman who is rejected by people. ये वो स्त्री है She is this woman जिनके बारे में लोग शहर में गलत गलत बोलते हैं। who people are spreading rumors about about her in the ये village. वही स्त्री है She is the same woman. जिनको लोग गांव में गिनते भी नहीं थे। The people will not count her in for anything. इसीलिए उतना दूर ये अकेला आती थी, Because of that, she has to travel alone पानी भरने आती थी to draw water. और ये अकेला जाती थी। And she had to go alone. ये अकेला इसीलिए आती थी, And she had to come alone. ये नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि मैं बाहर जा रही हूँ। She doesn't want anybody to know that she ये is जब भी going बाहर to जाती थी, Because whenever लोग इसको देखते थे, people used to see her, इसके बारे में पीछे बात करते they थे, used to gossip about her. इसको इंसल्ट करते थे। They used to insult her. अब सोचो कितना तकलीफ में ये स्त्री थी। Just think and imagine how difficult her situation is. इसके साथ कितना चीज हुआ रहेगा कि इसके लिए कोई नहीं था। What all she would have faced that she didn't have anybody to come along. ना माता पिता इसको सपोर्ट किए रहेंगे, Neither her mom, dad, ना इसके बच्चे होंगे तो उसको सपोर्ट किए रहेंगे, neither son, daughter, ना इसके फैमिली इसको सपोर्ट किया। nor her own family. ये खुद अभी पानी भरने इसीलिए जा रही है She had come alone to draw water क्योंकि ये प्यासी थी because she was thirsty. और जीसस इसको जीवन के पानी के बारे में बात कर रहे And हैं। Jesus is talking to her about living water. जीवन के पानी देने से पहला Even before giving the living water, जीसस उसको चंगाई करना चाहते हैं। Jesus wanted to heal her. इसीलिए जीसस बोले That's why Jesus कि said, जो बोल रही हो सही बोल, whatever you said is right. तेरे पास अभी कोई नहीं है। Nobody is there for you now. आगे बढ़ेंगे। Let's read ahead. स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु। मुझे लगता है कि हम्म, तू भविष्यद्वक्ता है। ओके, हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, हाँ, और तुम कहते हो कि हाँ। वह जगह हाँ, जहाँ भजन करना चाहिए हाँ, यरूशलेम में है। ओके, यीशु ने उससे कहा, ओके, हे नारी, हम्म, मेरी बात का विश्वास कर ओके, कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, ओके, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। ओके, परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, ओके, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही हाँ। आराधकों को ढूंढता है। ओके, परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। 30 तक पढ़ ले, फास्ट फास्ट। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि हाँ, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है हाँ, आने वाला है। हाँ, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ओके,
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ हाँ, वही हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर ये लोग दोनों का बात चल रहा है। There was a conversation between the women and Jesus. यीशु मसीह उसको गॉस्पेल बता रहे हैं। Jesus is preaching of the अब ये gospel. स्त्री को पता भी नहीं था कि यीशु कौन है। And this woman didn't even know who was Jesus. आप में से भी बहुत लोगों को पता नहीं है यीशु कौन है। Many of y'all over here who do not know who आप is उससे Jesus. बात तो कर रहे हैं, You're talking to him, पर आपको पता नहीं आपसे बात कौन कर रहा है। but you're not able to understand who is talking with you. अब यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि Now Jesus told her, नहीं हो जिसके लिए तू इंतजार कर रही I है। am the one for whom you were waiting. ये सुनकर ना After hearing this, खुशी से वो आगे बढ़। she was happy. इतने में उसके चेले आ गए हाँ, और अचंभा करने लगे हाँ, कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। ओके, फिर भी किसी ने न पूछा, हाँ, तू क्या चाहता है ओके, या किस लिए उससे बातें करता है। ओके, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर हाँ, नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, हाँ, आओ एक मनुष्य को देखो हाँ। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ, कहीं यही तो मसीह नहीं है। हालेलुया। अब स्त्री आई थी क्यों? Why did the women came here? To draw water, right? रिटर्न जाने के पानी लेके गई हो। While going, while returning, did she carry the water? वचन में लिखा है The word says 28 पे, in 28, उसने टोकरी छोड़कर she left the jar भाग गया। and ran away. जरूरत क्या था उसका? What was her need? उसका टोकरी में पानी। She wanted to fill water, पर जब यीशु मसीह ने उससे बात किया, but when Jesus spoke to her, वो टोकरी वहाँ पर ही छोड़कर she left the jar there. भाग गई। She ran away. देखो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था इस स्टोरी में। I wanted to teach you this. आप एक जरूरत से यहाँ पर आए। You are here with a need. यीशु मसीह आपसे बात करता है। Jesus is talking to you. उस जरूरत को आपको यहाँ पर छोड़ के जाना चाहिए। You bring your need, you leave your need here and go. आगे पढ़ के गति कम करेंगे। 39 Let's और read. 40 पढ़ेंगे। Let's read the last two verse, 39 and 40. और उस नगर के हाँ, बहुत से सामरियों ने हाँ, उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, हाँ, जिसने यह हाँ, गवाही दी थी हाँ, कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है ओके। मुझे बता दिया। ओके, तब जब ये सामरी उसके पास आए हाँ, तो उसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ हाँ, रह, ओके, और वह ओके, वह 2 दिन तक रहा। ओके। हालेलुया। 39 40 हालेलुया। 41 है। हाँ, 41 पढ़। और उसके वचन के कारण हाँ, और भी बहुतों ने विश्वास किया ओके, और उस स्त्री से कहा, हाँ, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, हाँ, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया हाँ, और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। Hallelujah. उनका स्टोरी खत्म। That's the story. अब उसके कहने से पूरा शहर पे क्या आ गया? After hearing her, what happened? पूरा शहर यीशु मसीह को The whole city अपना लिया। accepted Jesus. ठीक है, आप लोगों को इस स्टोरी में से क्या समझा? What did y'all understand from this story? अब मैं आपको बताता हूँ। I will tell you. आप और मैं ही वो स्त्री है। You and me are the women. आप लोग को भी लोग ने रिजेक्ट किया है, Even you were rejected, उस स्त्री को भी लोग ने रिजेक्ट किया है। and that woman was also rejected. आप लोग भी तकलीफ में, Even you are in problem. उस स्त्री भी तकलीफ में। That woman had a problem. आप लोग की लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा था, In your life was also there. Nothing was right. उसके लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल In रहा था। her life also nothing was right. वो सबसे छुप के जी रही थी। She was just hiding from everyone. वो उसी लिए गई थी She went there क्योंकि उसको पानी चाहिए था। because she wanted But- water. But उसको पानी से कुछ बड़ा मिल गया। instead of water, she got something bigger. जब ये चीज वो समझ ली ना, And when she understood this, उसका जरूरत को उसने छोड़ दिया। she left her need वो there. भाग कर गई She ran back उन लोग को बताने and told the people, जिन लोग उसको तुच्छ माने थे। the people who thought less of मैंने her. आपको शुरुआत में बोला ना, What I told you, लोग आपको नफरत करते हैं, people will hate you. लोग आपको तुच्छ मानते हैं, People will think less of you. लोग आपको गिनती नहीं करते, People are not counting पर you. परमेश्वर ने आपको चुना है। But God has मैं आपको chosen you. बताना क्यों चुना है वाले, I told you why God उन has लोग को chosen you. परमेश्वर के बारे में बताने के लिए Because आपको to चुना। tell others about Jesus. ये स्त्री को This women पूरा गांव भरोसा नहीं करता था। did not, the entire people did not believe. अगर आप 41 पढ़ेंगे तो If you read 41, 41 में लिखा था कि in 41 it's वो गांव के written, लोग खुद बोल रहे हैं
The people of that village said, तेरा कहने पे हम लोग भरोसा नहीं करते। we did not believe your word मतलब एक गांव के लिए वो रिजेक्टेड थी। because the people there rejected her. एक गांव में उसको कोई गिनती नहीं करता। In that village, nobody counted her in. पर उसको ही रख के परमेश्वर ने उस गांव में उधार लाया। But through her, God delivered the people from that ये village. स्टोरी में मैं एक ही चीज समझा। In this story, I understood only one thing. आप यहाँ पर एक जरूरत से आए थे। You are here with a need आप एक today. तकलीफ में आए थे। You are here with a problem. आप कमजोरियां में ही आए You are थे। here with some weakness. आप उसको यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। You just leave it here and go. कहाँ जाओ? When you go out, उनको बताने जाओ go and tell to those people, जिन लोग ने आपको तुच्छ माना था। the people who thought less of you. उनको जाके बताओ कि यीशु मसीह कौन है। Go and tell them how Jesus is. इसीलिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। That's why God has separated you. इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। That's why God has chosen यहाँ you. पर आप जितने लोग बैठे हैं ना, The people who are here, आप चुने हुए लोग हैं। you are the chosen और people. परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है And कि God has chosen you स्त्री के जैसा so that, like the women, आप जाके सुसमाचार बताएंगे। you go and preach the तुमको gospel. बोलूं, सब स्त्री को तुच्छ माने थे। Everyone rejected her. इसने सुसमाचार बताया, She went and preached the पूरा gospel. शहर उधार पाया। The entire city was saved. पूरा शहर में किसी का बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, In that entire city, nobody's name is taken in this book. एक का ही नाम लिखा है, But only one of the name is वो taken. स्त्री। That is a Samaritan woman. जब भी ये सुसमाचार बताया जाएगा, Whenever this gospel will be preached, उसके बारे में बात किया जाएगा। we will talk about that Samaritan woman. इससे पहले उसके बारे में बात कुछ भी हुआ रहेगा, Before that, anything would have been spoken of her. पर अब हम उसके बारे में एक ही चीज बात करते हैं। But after, like, we today talk only one thing about her. उसके कारण Because of her, पूरा शहर उधार पाया था। the entire city was saved. तो समझो कितना बड़ा सेवा इसने किया है। Just imagine how big her ministry was. 5 पति थे, She had 5 सब husbands. छोड़ दिए उसको। Everyone left her. अभी एक के साथ जी रही थी, And there was one husband वो भी now. उसके लिए पति नहीं था। Even he did not act as an husband. सब लोग उसको तकलीफ देते थे, Everyone troubled her. खुद के घर वाले भी उसको नहीं गिनते थे। Her own family did not counter it. सोचो, ऐसा टूटा हुआ चीज को This type of broken things परमेश्वर चुनता है। God chose. तो परमेश्वर आपको इसीलिए चुना है So God has chosen you कि आप भी टूटे हुए हैं। because even you are broken. आपको भी लोग ने रिजेक्ट किए थे, Even you are rejected by people. आपको भी लोग ने इनकार की। Even you are rejected by people. आप वही रिजेक्टेड स्टोन हो, You are the rejected stone. जैसा सैम 118 सब लेके भजन संहिता 118 पे Let's take Psalm 118, 22 22. भजन संहिता में 118:22 118:22 संगीतम. The stone the हाँ. builders rejected ओके, has become the cornerstone. हालेलुया। Hallelujah. हम सब पढ़ेंगे ये वचन। Let's read संगीतम भजन संहिता 118 में 22। 118:20. राजमी स्त्रियों ने हाँ जिस पत्थर को हाँ निकम्मा ठहराया था हाँ, वही कोने का वही खोने का सिरा हो गया है। हालेलुया। வீடு கட்டுகிறவர்கள் வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று ஆகாதென்று கல்லின் கல்லே தள்ளின கல்லை மூலைக்கு தலைக்கல்லாய். मूले की तलेगल। हालेलुया। Hallelujah. ये पत्थर नहीं चाहिए करके सबने टुकरा दिया। This stone is not required. ये स्त्री उस गांव के लिए नहीं चाहिए थी। This woman was also not required for that village. पंचायत में उसका नाम निकाला गया था, From the panchayat, her name was removed. राशन कार्ड में उसका नाम निकाला गया था, Name was removed from the ration card as घर well. वालों ने भी उसको निकाला गया था। Her own family had removed her, यीशु rejected her. मसीह ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। Jesus did not reject her. ये पत्थर जो लोग ने नहीं चाहिए बोला ना, The stone which the builders rejected, ये बन गया अभी मूल्य पत्थर। that has become the cornerstone. उसका मतलब क्या है मालूम है? What does that mean? पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया The entire building एक stood पिलर की वजह से। because of that one stone. अगर एक पिलर को हटाएंगे ना, If that one stone is removed, तो बिल्डिंग हिल जाएगा। the building will collapse. इसी तरह आप लोग Same way you
जो लोग ने आपको टुकराए, The people rejected you, right? आपको जो इज्जत नहीं दे रहे The थे, people insulted you, right? आपको गिनती नहीं करते They थे, did not count वो you. चाहे कोई भी होने दो, No matter who they are. इतना भी बड़ा आदमी होने No दो, matter how big they अरे are. आपके खुद के लोग भी होने दो, Even if they are own people. वो लोग जानेंगे एक दिन, They will know one day. इसके बिना Without her, कुछ नहीं हो सकता। nothing can be हालेलुया। done. Hallelujah. परमेश्वर आज आपको Today Jesus is saying, एक मूल्य पत्थर बना रहा He's है। making you a corner. हम सब खड़े हो जाएंगे। Let's stand up. मेरे प्रिय भाई और बहनों, My dear brothers and sisters, हम अभी खत्म करेंगे 2 वचन पढ़कर। now we will read 2 verses and we will end. मैं इस स्टोरी आपको शॉर्ट में बता सकता था, I could have said this story मैं in short. इसीलिए सबने ये स्टोरी पढ़े, Everyone has read this तो story. मैं स्टोरी इतना डीप क्यों आपको बताया मालूम है? But why I explained so detailed, you know? इस स्त्री की जिंदगी में कुछ भी था, In this woman's life there was anything happening. जैसे ही उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला, But when she came to know about Jesus Christ, उसने पहला काम क्या किया मालूम है? what she did first, you know? वो पूरा शहर को जाके बता दी, She went to the entire city and told about Jesus. जी यीशु मसीह आज आपसे भी वही चाहते हैं। Today Jesus is also requiring you to do the same thing. क्यों मालूम है आपसे अकेला बात करने आया है? Why he has come to talk to you वो जानता है alone? आप तकलीफ में हैं, He know you are in a problem. वो जानता है आप टूटे हैं, He knows you are broken. हाँ वो आपका समस्या भी जानता है, He knows your problem वो जानता है altogether. आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, He knows that nobody is there for you on और वो earth. चाहता है कि आपको रखकर But he wants through you, पूरा दुनिया को उधार देना he है। wants to save the entire world. आप यहाँ पर जब आए थे, When you came here, मैं जानता हूँ आपका स्थिति क्या था, I know how your situation आप was. एक टोकरी लेके आए थे You also came with a jar पानी भरने के लिए, to draw water क्योंकि आप प्यासे थे, because you were thirsty. और उस स्त्री ने टोकरी को वहाँ पर ही छोड़ दी, But that woman left the jar वो there. प्यास के बारे में सोची नहीं फिर वो। Now she did not think about thirsty. क्योंकि उसको क्या मिल गया था? Why, you know? हालेलुया। Hallelujah. आप में से कितने लोगों को जीवन का जल मिला है आज? How many of you all have received the living water? आप समझे आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है? You now understood why God chose you. आप अपने आप को कम मत समझो, Don't think less of you. आप हर एक को रखकर Every one of you standing here, बड़ा उद्धार परमेश्वर ला सकता God has kept a big deliverance. है। वो स्त्री खुद ने जानती थी, That women did not know. उसके द्वारा Through her, उसका शहर पे उद्धार मिलेगा, her entire city will be saved. उसका नाम Her name आपकी जीव पुस्तक में लिखा will जाएगा। be written in the book. उस पत्थर In that stone, उस पत्थर को जिसने कोई गिनती भी नहीं किया था, the stone which was rejected and not counted for, उस पत्थर को through that stone, परमेश्वर उपयोग किया। God has used as a foundation. आज आप समझते रहेंगे Now you might be thinking today, मेरे को कैसा उपयोग करेगा? how can God use me? मेरे को तो मेरे घर वाले इज्जत नहीं देते, My own family is not using me. मेरा पत्नी मेरे को इज्जत नहीं देती है, My wife is not honoring me. मेरा पति मेरे को कभी खाना खाया क्या भी नहीं पूछता है, My husband never asked whether you had your food. मेरा बच्चे मेरे पे ध्यान भी नहीं देते, My children are not even looking at me. मेरे को कैसा उपयोग करेगा? How can someone use me? हम वचन पढ़ेंगे Let's read 1 Corinthians 1 कोरिन्थियों में 1:27। 1 में 27 रीड करेंगे। 1 कोरिन्थियों में 1:27। ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி हाँ தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். ओके பலமுள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி ओके தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். हालेलुया। हम हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ेंगे। Let's read in हिंदी 1 कोरिन्थियों में 1 में 27 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को, हालेलुया, परमेश्वर को आप ही चाहिए। Jesus needs you only. परमेश्वर को बुद्धिमान का जरूरत नहीं है, God does not want wise people. बलवान का जरूरत भी नहीं है, He doesn't want someone who is with strength. बहुत पैसे वाले की भी जरूरत He नहीं है, doesn't want someone who is very rich. अच्छे लोग का जरूरत नहीं है, He doesn't want good people.
परमेश्वर को आप चाहिए Jesus wants you कि आपको रखकर because through you उनको उधार देना He है। wants to save the city. Hallelujah. Hallelujah. तो ये एक चीज याद रखना, So remember one thing. अगर इस लोग आपको नफरत कर रहे हैं, If the people rejected you, अगर इस लोग आपको कभी भी इज्जत नहीं दे रहे, if the people did not honor you, लोग आपको कभी गिनती भी नहीं कर रहे, if people did not count you in, तो परमेश्वर ने आपको चुना है। that means God has आप चुने chosen. हुए लोग, You are the chosen आप people. वो पत्थर हैं जो परमेश्वर एक मूल्य पत्थर बनाने You वाला are the same stone. God will make you a है। cornerstone. आपको रखकर ही Through you, बहुत लोग उधार पाएंगे। many will be saved. आप कम मत समझो अपने आप Do को। not think less of you. परमेश्वर के चुने हुए लोग आप ही हैं। The chosen of God is you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब हम बोलेंगे एक दूसरे को, Now we will say to each मैं other, परमेश्वर की चुना हुआ लोग I am the chosen one of God. सबको बोलो, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। Say, I am the chosen one of God. आजू बाजू में बोलो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। Tell to the people who are sitting next to you, I am the सबको chosen one बोलो of कि God. परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने मुझे चुना है. हालेलुया। Hallelujah. अभी कोई रोएंगे क्या कि मेरे को कोई इज्जत नहीं देता, पति इज्जत नहीं देता, कोई तकलीफ उठाएंगे? Now anybody will cry that nobody is honoring me, respecting me, Thank taking you, care of Daddy. me. किसका इज्जत का जरूरत है अपने को? And you require anyone's respect and honor. यीशु मसीह Jesus, सबको छोड़कर he left everyone. और एक स्त्री के लिए इंतजार कर, He was just waiting for that one woman. आज आपके लिए भी वो इंतजार कर The रहे हैं। same way Jesus is waiting for you today. आपको आपका मूल्य नहीं मालूम है, Because you do not know your worth, आप अपने आप को साधारण समझ रहे हैं, you just thought you are an ordinary. पर यीशु मसीह जानता है But Jesus knew, आप कौन हैं। He knew who are you. अब एक जन नहीं है, You are not one. अब एक झुंड है। You are a. ये आपके द्वारा Because of you, इस पूरा पल्लवा उधार पाएगा। the entire Pallava city ये will be पूरा saved. पल्लवा यीशु मसीह को जानने वाला The है। entire Pallava city will know Christ. आप 20-30 लोग को रख गए। Because of you, 30. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे चुना इसके लिए धन्यवाद। Say, God, you have chosen me. I thank you for that. ना उपयोग मुझे अपने चुना इसके लिए I am धन्यवाद। unworthy, still you chose me, so I thank you, Lord. मुझे अभी किसी का जरूरत मेरे I परमेश्वर। don't need anyone. कोई मुझे पूछे या ना पूछे, Whether someone asks about me or not, आप मेरे लिए काफी है परमेश्वर। you are enough for me. हालेलुया। हम Hallelujah. अपने आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, Let's close our eyes. हम अब प्रार्थना करके खत्म करेंगे। Now let's pray. परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इसीलिए लाया है God has called you here क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। because you are chosen people. आप आने से पहले Even before coming over here, वो आपके लिए इंतजार कर रहा He था। was waiting for you. वो जानता था कि आप एक जरूरत के साथ आएंगे। He knew you would come here with a need. वो जरूरत तो पूरा होगा, That need will be fulfilled. पर उससे भी बढ़कर But ahead of that, आज परमेश्वर ये बताना चाहता है Jesus wanted to tell you कि आप कितना मूल्यवान है। how important you are. हो सकता है इस दुनिया में कोई भी आपको गिनती नहीं करते देखे, Maybe in this world nobody is counting you in. आपके अपने लोग भी आपको इज्जत नहीं देते रहेंगे। Your own people are not respecting you. आप समझते रहेंगे मैं कितना कमजोर हूँ You परमेश्वर, might be thinking how weak I am. मेरे लिए कौन है Who परमेश्वर, is there for me? मेरे से बात भी कोई ठीक से नहीं करता है परमेश्वर, Nobody even talks to me well. मैं ना अच्छा पढ़ा हूँ परमेश्वर, Neither did I study well. ना मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा है Nor परमेश्वर, do I have much money. मेरे खुद के घर में इतना कमजोरियां है In परमेश्वर, my own family I have so many things. मैं खुद कितना रो रही हूँ परमेश्वर, I'm crying so much because of all ये these सब things. परमेश्वर जानता है। God knows all these things. वो यहाँ पर तेरा समस्या से तेरे को लज्जित करने बलवीन बताने नहीं आया है। He is not here to tell you how shameful life you are living. आप छोटी चीज देख रहे You're हैं, just looking at the small वो things. आपके लिए बड़ा चीज देख रहा He है। is looking at a bigger आप thing for अपने you. आप को एक रिजेक्टेड स्टोन देख रहे You हैं, are thinking that you are a rejected आप soul. अपने आप को सबसे टूटा हुआ एक इंसान देख You रहे are हैं, just thinking you are, I am so broken. पर आप में परमेश्वर एक मूल्य पत्थर देख रहा But है। inside you God saw a cornerstone. परमेश्वर बोले इस पत्थर पर, God said in this ये जो stone, खड़े हैं इस पत्थर पर God says in this stone who's standing over मैं here, तेरे कलीसिया को बांध दूंगा। I will build my
church. और कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता And है। nobody can break और जो भी her. इसे तोड़ने चाहेगा And anybody who is trying to break him, उसको परमेश्वर तोड़ेंगे। God will break हम him. अपनी आंखों को बंद करेंगे Let's close our कि eyes. परमेश्वर ये कहता है कि Because God says वो न्याणियों को मैं टुकराने के लिए, to make the foolish wise, वो न्याणी वो बुद्धिमान लोग को टुकराने के लिए to lead the wise people. मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही चुना हूँ, He has chosen the foolish ones. मैं टूटे हुए को ही चुना हूँ I have chosen the broken ones. और मैं आपको रख के ही And through you only, मैं उनको उधार देने वाला हूँ। I will deliver them. ஞானிகள் மத்தியில் பைத்தியம் என்னை அழைத்தது அதிசயமே. ஞானிகள் மத்தியில் பைத்தியம் அழைத்தது அதிசயமே. நான் இதற்கான பாத்திரம் அல்ல, இது கிருபை வேறொன்றுமில்லை. நான் இதற்கான எல்லாரும் வாய்கள் திறந்து சொல்லுமா, நான் இதற்கு பாத்திரம் அல்லப்பா. परमेश्वर आपने हमें चुना है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord Jesus, for you have chosen me. प्रभु आप हमें एक मूल्यवान पत्थर समझते हैं प्रभु। God, you thought that I am a cornerstone. शायद इस दुनिया के लिए उपयोग नहीं था प्रभु, Maybe for this world I am a useless thing. पर आपके लिए मैं एक मूल्यवान पत्थर है But प्रभु। for you I am an important stone. मैं यहाँ पर आने समय परमेश्वर, While I have traveled here, मैं मेरे जरूरत से यहाँ पर आया हूँ I प्रभु। came up with my needs. मैं मेरा तकलीफ लेकर यहाँ पर आया हूँ I प्रभु। came up with my own मैं problems. मेरा सोच और समझ से आया हूँ प्रभु। I came up with my own thoughts.
thoughts. मैं ये सोच रहा था और कितना वेदना उठाना है I was just thinking how much more burden should I और carry? कितना तकलीफ में उठाऊं How much more burden should I और carry? कितना मेरे से नहीं हो रहा है। I can't, Lord, because I'm not able to. उस स्त्री भी वैसी ही आई थी प्रभु, The same way that women also thought. वो अकेले आ रही थी प्रभु, She came alone. वो सबसे छुप के आ रही थी प्रभु, She came hiding. वो तक कर आई थी प्रभु, She was उसको tired. बार बार आना पड़ता था She had प्रभु, to come again and again क्योंकि वो प्यासी थी because प्रभु, she was वो thirsty. अकेली थी She was प्रभु, alone. उसके लिए कोई नहीं था No प्रभु। one was there ये for लोग her. भी वैसे यहाँ पर आए थे And प्रभु, these people are also coming here with जैसे the उस same. स्त्री के लिए आप इंतजार कर रहे थे How प्रभु। you waited for that one इन woman. लोग के लिए भी आपने इंतजार किया, इसके लिए For धन्यवाद this प्रभु। people also you are waiting, Lord. परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे थे, God is waiting on you. परमेश्वर ये सोचकर इंतजार कर रहे थे कि God is seeking this and waiting on you. आप आएंगे, That my children will come. आप आएंगे, My children will आप come. यहाँ पर हाथ छुपे हैं, Now you are here. आप आपके जो भी बोझ है Now whatever burden you have, यहाँ से फिर से लेके मत जाना, don't carry the same burden and go उसको out. यहाँ पर छोड़ के चले जाना। Leave that burden here. आप तकलीफ से आए थे, If you are with trouble, तकलीफ को यहाँ पर छोड़ leave दो। the trouble here. अब कमजोरियों में आए थे, If you are with weakness, कमजोरियों में यहाँ पर छोड़ leave दो। the weakness अब here. जरूरत से आए थे, You came with the need, जरूरत को यहाँ पर छोड़ leave दो। the need here. अब बिना समाधान आए थे, If you are without peace, यहाँ पर छोड़ दो, leave your unpeaceful heart here. क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही चीज को लेके जाना है, Because from here you have to वो take यीशु one. मसीह को। That is Jesus जैसे Christ. उस स्त्री ने उस गांव में सिर्फ एक चीज को लेके गई थी कि Let that woman take only one thing to the मैंने village. उसको देख ली है, I have seen the मैंने उसका Savior. बात सुन लिया I है, have listened to the Savior. उसका नाम यीशु है। His name is Jesus Christ. आपको भी उतना ही करना है, Even you have to do the same आपको thing. यहाँ से सिर्फ एक चीज को लेके जाना While है, going from here, you have to take one. यीशु मसीह। Jesus और Christ. उस यीशु मसीह के बारे में And the name of Jesus Christ. और जगह बताना You have है, to go and tell. क्योंकि परमेश्वर ने Because ज्ञानियों के बीच में amidst the wise people, आपको चुना, He has chosen you. आपको चुना, He has chosen you. आपको ही चुना He है। has chosen you only. आप सोच रहे हैं मैं को क्यों चुना है? You are thinking why God chose me? क्योंकि उसके लिए आप एक मूल्य पत्थर है। Because for God you are. ताली बजाकर एक चीज पढ़ लो, Clap your hands and और वो receive it. परमेश्वर मुझे चुने इसके लिए धन्यवाद। God has chosen me. I thank you, Lord. परमेश्वर आपने मुझे लायक सोचे इसके लिए धन्यवाद। God, you thought I am worthy. I thank you, Lord. परमेश्वर आप मेरे को मेरे द्वारा इस शहर को उतार देने वाले इसके लिए धन्यवाद। Through me you are going to save this city. I thank you, Lord. ऐसा कर रहे परमेश्वर, इसके लिए आपको You are धन्यवाद doing कहते हैं। this. I am thanking you for that, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. इन सबको आप आशीर्वाद करें इसके लिए धन्यवाद। Thank you. Bless मैं everyone. जानता हूँ ये सब चुने लोग हैं I प्रभु, know everyone is chosen. ये सबको आने वाले दिन में Ahead days, ये लोग को रखकर आप बड़ा काम करेंगे प्रभु, them you are going to do big, big works, Lord. इनका नाम को आप रोशन करेंगे प्रभु, Their name will be glorified for your sake. इनका द्वारा आप उदाहरण देंगे Through प्रभु, them there will be deliverance. इनके द्वारा Through them, अनेक लोग यीशु मसीह को जानेंगे many प्रभु, people will know about Christ. ये एक वैसा पत्थर बन जाएंगे They प्रभु will become a stone जिसमें तू तेरा राज्य को बांधेगा in प्रभु, which you can और build your कोई भी kingdom. इस पत्थर को तोड़ नहीं And सकेगा nobody प्रभु, can break this क्योंकि stone ये तूने बनाया हुआ पत्थर है because you प्रभु। are the one who made this आप ऐसा stone. इनको आशीर्वाद करें इसके लिए धन्यवाद। You're blessing them with this. I thank you, Lord. मैं इनको और इनके परिवार को आपके हाथ में अर्पित करता I'm हूँ, surrendering them and their family in your आप hands. इनको संभाल लेना प्रभु। Take care of them, Lord. और प्रभु में जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ I'm also प्रभु, praying for the people who watch online. उन सबको आप आशीर्वाद करो प्रभु। Bless them as मैं well. उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो आज आ नहीं पाए I'm प्रभु, also praying for the people who couldn't make it उनको today. और उनके परिवार को तुम संभाल के रखना Bless प्रभु। them and their family as well. आज के दिन के लिए जो भी प्रार्थना किया और उपयोग किए थे प्रभु, People who worked for today and have been helping us उनको for दुगना today. आशीर्वाद करो Bless प्रभु। them twice, Lord, प्रभु फिर से हम मिलने तक प्रभु until we meet again. इन सबके जिंदगी में एक बदलाव देना प्रभु। Everyone should see इनको a change in their ये life. महसूस हो रहा है कि ये वो मूल्य पत्थर है प्रभु। Let them experience that they are that cornerstone. ये अगर काम पे जा रहे हो If they are going to work, वहाँ पर इनको एक विशेष रूप में बताना प्रभु। show them as an outstanding ये इनके performer. दोस्त लोग को मिल रहे हो If you are meeting their friends, उधर भी इनको बताना एक मूल्य पत्थर है। show them as their cornerstone there as ये well. अगर इनके परिवार के बीच में है भी If they are with their family, बताना कि ये विशेषित लोग हैं प्रभु। show them that they are special. Let there be a difference between them and the other people, God. Lord, if Jesus Keep equal your और blessing दुनिया on के your लोग hand, के God.
presence, अपने God. आशीष से इन्हें भर दो। Protect them from all the evil people, God. सब जो दुष्ट लोग हैं उनसे इनको बचा के रखो। Guide them, God. इन्हें चलाना And परमेश्वर, be with them, God. और उनके साथ देना परमेश्वर। हम धारावी ओरिजिनल सांबल पट्टी का आराधना के लिए भी प्रार्थना हम करते हैं। दरावी चर्च उड़ियंदल और सांबलपट्टी जहाँ भी प्रार्थना चल रही है वो आपको हाथ में दे रहे हैं। इस दुनिया में जिधर भी प्रार्थना चल रहा है प्रभु, ये दुनिया wherever there is praise service happening in the entire उस world, सब जगह में आज आपका नाम महिमा होना चाहिए प्रभु। all throughout the world, let your name be glorified, Lord. अनेक लोग आज यीशु मसीह को जानना चाहिए Many प्रभु। people should know who we are, तेरे Lord. राज्य बहुत जल्दी आना चाहिए Let प्रभु। your kingdom come, Lord. सब चीज आपके हाथ में अर्पित करते हैं प्रभु। Completely surrendering everything in your hand. आप बढ़ना चाहिए We प्रभु should increase और हम करना चाहिए as प्रभु। we should decrease. हम विश्वास के साथ प्रभु, With faith, Lord. हम यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. हम जानते हैं हम एक मूल्य पत्थर है। We know we are the cornerstone. हम जानते हैं हम एक चुने हुए लोग We हैं। know that we are the chosen हम vessels. जानते हैं कि आप हमारा द्वारा ही We know that you are for us. आप हमारे द्वारा इस शहर को उधार देने वाले हैं। Through us, you will heal, you will deliver the city. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. ना उपयोग मुझे भी उपयोग किया। I'm not worthy, still you made me worthy. हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु We give all the glory to you और alone. यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं In प्रभु। Jesus Christ's name I pray. मेरे जीवित पिता, In Jesus' name we pray. We Amen. say Amen. Amen. ये मेरे मन ए मेरे मन यहोवा को धन्य को यहोवा को धन्य को और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम के लिए उसके धन्य को। पवित्र नाम को धन्य को। ये मेरे मन ए मेरे मन यहोवा को धन्य को यहोवा को धन्य और उसके किसी उपकार और को उनके किसी उपकार को कभी नहीं भूला। कभी नहीं भूला। इन आत्मावे कतरे स्तोत्री, इन मुළුलु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  हालेलुया।